So today we will see about the heat engine and Carnot cycle. So what exactly a heat engine is? So let's write the definition. Heat engine is a device that converts heat into mechanical work, right? But the important thing is that uh, about engine, this conversion of heat into mechanical work इज कंटिन्यूस एंड रेपिटेटिव. ऐसा नहीं है कि बस एक बार कर दिया तो छोड़ दिया. नो, इट हैज़ टू बी रेपिटेटिव, लगातार, कंटिन्यूस, राइट? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड ऑटोमेटिक. यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल agency to to uh, to continue that process. Okay, so let me write that part also. So by operating in a cyclic process, between two reservoirs. Okay, so I forgot to write one thing. It is a device that converts the heat into mechanical work continuously or repeatedly. Fine. So this word is important. Okay. So and this thing is important, cyclic process. So this process is going to be cyclic. अगर मैं इसको पीवी डायग्राम में या किसी इंडिकेटर डायग्राम में इसको डिनोट करूं तो मेरे पास सिस्टम का इनिशियल स्टेट यहाँ पर था और आफ्टर डूइंग समथिंग दैट सिस्टम इज गोइंग टू कम back to the initial state. So it has to be it has to be cyclic process and it should be repetitive, like again it should repeat the same process over and over again, right? Fine. So this was that thing. Now what kind of cyclic process it can be? क्योंकि हमारे पास हमने बहुत काइंड ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस देख लिए हैं. Because every cyclic process can be combination of multiple non-cyclic process, right? तो मैं कौन सी cyclic process लूँ? That is the question. Okay, so कार्नोट इंजन का मतलब ये है कि ऐसा इंजन जो कार्नोट साइकिल पे काम करता है and that cycle is very very specific. Okay, so what are those what kind of processes are in that cycle? So let me write what is the special about Carnot engine and Carnot cycle. Okay, Carnot heat engine. So first of all, it is an ideal engine. Again, we have seen many things in the subject that are ideal, that doesn't exist in reality in practical life, but still we read them because they give some very important information about the subject. Okay, so it is a ideal engine out of all the engines possible
working between same reservoir. I think you know what is the meaning of reservoir. uh, Carnot heat engine is the engine with maximum possible efficiency. Okay, there are few new words here. Let me highlight them. What is the meaning of reservoir and what is the meaning of efficiency? Reservoir uh, is a, you can say, very big source of heat or a very big sink of the heat. If any amount of heat is inserted in that material, then there is no change in the temperature of that material. Or either another way, if any amount of heat is taken from that, it will not change the temperature of that material. That is the meaning of uh, reservoir. Okay, and what is the efficiency? Okay, like we said that heat engine, what is the purpose of the heat engine? The purpose of heat engine is the converting heat into mechanical energy, mechanical work, right? So how efficient the conversion is happening, कि हम कितना हीट देने पर कितना वर्क ले पा रहे हैं. जितना ज़्यादा हम वर्क ले पाएंगे उतना बेटर हमारा इंजन होगा और उतना बेटर उसकी एफिशिएंसी होगी. द बेटर द एफिशिएंसी, द बेटर द हीट इंजन. Okay, so this is the meaning of heat, this is the meaning of efficiency. So let me write that. What is the meaning of efficiency? Efficiency is work done, क्योंकि हम ये mechanical work done in a cycle, in one cycle, divided by heat absorbed by system. क्योंकि हम उसको कुछ हीट दे रहे हैं, उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब की है, एंड कितना उसने वर्क किया उस हीट को यूज़ करके, दैट इज़ द रेशियो बिटवीन दीज टू क्वांटिटी is called efficiency. It is denoted by eta in maximum books. Okay, so Carnot heat engine की क्या, one more thing, the T is silent in the pronunciation of Carnot. So Carnot heat engine की खासियत ये है, it first of all it is ideal. You will never see this Carnot engine in reality, but it is giving a cut off कि भाई इससे बेहतर इंजन you will never get in the world. I mean इससे बेहतर एफिशिएंसी वाला इंजन तुम नहीं बना सकते हो. That is what it is saying, right? Carnot engine is the engine with maximum possible efficiency. Okay, fine. Few more thing about this Carnot engine. Let me write it here only. That is Carnot heat engine works or based on a reversible Carnot cycle. We will see what is this. क्योंकि हमने बोला कि कोई भी इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस पर काम करता है, तो कार्नो इंजन का जो साइकिल होगा उस साइकिल को हम कार्नो साइकिल बोलते हैं. अब नाउ वी विल सी व्हाट इज दैट कार्नो साइकिल, एंड दैट कार्नो साइकिल इज रिवर्सिबल कार्नो साइकिल. लेट मी सी एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट रिवर्सिबल कार्नो साइकिल. So we are using this word reversible just because key process that are here, all the processes are reversible processes, and we know that reversible processes are not possible in the real world. That is why
reversible Carnot cycle cannot possible, hence the Carnot engine is not possible. Okay, so the खासियत क्या है इस रिवर्सिबल Carnot साइकिल की, that is Carnot engine की, it is made of 4 reversible processes. 4 reversible processes. Okay, you just have to see कि ये कौन सी 2 processes थी, and once you remember or once you see them, then it is very easy to think about it. So those are, first process is isothermal expansion, then adiabatic expansion. Okay, third is isothermal compression, and fourth is adiabatic compression. Fine. The important thing is that 2 processes are there. I mean, the type of process is isothermal or adiabatic. These are 2 types, and there is, in first 2 cases we are getting expansion, and in the last 2 cases we are getting compression. Okay, so this set of this particular set of process is called Carnot cycle. That's it. अगर इन चारों में से कोई भी एक प्रोसेस को तुमने चेंज कर दिया, मान लो मैंने इसको हटा करके आइसोबैरिक कंप्रेशन कर दिया, then it will not be a Carnot cycle. These 4 process has to be there in order to get the Carnot cycle, remember. Okay, and one more thing about Carnot cycle I forgot to write above that. Okay, let me write here only. That thing is working substance. Okay, the working substance of Carnot cycle, I mean that gas or the material that is expanding the system, or that is being compressed, जिसको compress किया जा रहा है, और जो अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, सिस्टम का जो वॉल्यूम बढ़ा रहा है, वर्किंग सब्सटेंस ऑफ द Carnot cycle is ideal gas. Okay, it is an ideal gas. So we can use all the formula that we have derived for the ideal gas and all the formula that we have derived for reversible processes. So ये फ़ायदा है इस Carnot इंजन को पढ़ने का, सब कुछ आइडियल है यहाँ पर. ओके, फाइन. सो लेट अस सी दैट कि ये कैसे कैसे इसमें हर एक प्रोसेस को देखते हैं, 4 के 4 प्रोसेस को देखेंगे, देन वी विल सी कि कैसे क्या हो रहा है. ओके, the first process is isothermal expansion. So as the name is suggesting that we are expanding the system and the temperature is fixed, right? So suppose I am having this system that is an ideal gas in a container, but the thing is that if there is some expansion, अगर ये मान ले इसका initial state था A, okay, small a, और ये एक्सपैंड हो करके इसका जो वॉल्यूम था वो इतना बढ़ गया यहाँ तक, लेट अस सपोज बी तक. फाइन. तो व्हाट डू यू थिंक, जब किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा उसका टेम्परेचर घटना चाहिए ना. वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटना चाहिए ना. क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी कि डी वी इज़ पॉजिटिव, सो वर्क इज़ डन बाई गैस. गैस कुछ काम करेगी, और वो गैस जब काम करेगी तो गैस की एनर्जी लूज होगी, राइट. गैस के पास जो क्या है इंटरनल एनर्जी थी वो लूज होगी, और यहाँ पर आइडल गैस थी. आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी बस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर का यूज़ होगा. टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी आ रही है
वो एनर्जी यूज होगी, तो यानी कि वो एनर्जी जब डाउन होगी और वही डाउन की गई एनर्जी वॉल्यूम को बढ़ाएगी, और एनर्जी डाउन होगी तो टेम्परेचर भी डाउन होगा, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर घटेगा. लेकिन व्हाट डू वी वांट? वी वांट आइसोथर्मल एक्सपेंशन. वी डू नॉट वांट टू चेंज द टेम्परेचर. सो इसीलिए हम पहली जो प्रोसेस है उसको आइसोथर्मल करने के लिए वी नीड अ reservoir. Suppose this is the reservoir जिसका टेम्परेचर T, लेट्स कॉल इट H. इस टेम्परेचर फिक्स्ड, इस टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम नॉट वॉल्यूम, टेम्परेचर फिक्स्ड है इस रेजरवॉयर का, डेट इज TH. ओके, सपोज ये हमारा रेजरवॉयर है. ओके, गुड. तो इस स्टेट को हम लेट्स डिनोट बाय P1 V1 T1. दैट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस. बट जब एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर विल चेंज, वॉल्यूम विल चेंज, बट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हीट रेजरवॉयर. तो अगर मैं इस प्रोसेस को अपने PV डायग्राम में दिखाऊं, ठीक है, तो इनिशियल स्टेट का क्या थी, मेरी A थी, यहाँ पर थी P1 V1 T1 पर थी. और आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन में हमने देखा था कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, राइट. तो ये ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, हाइपरबोला लाइक दिस. ओके, लेट्स इट इज लाइक दिस. और यहाँ पर जो अब स्टेट जो B, A स्टेट से B स्टेट पर गया हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट P2 V2 T1, right. So this is the first process in the Carnot cycle. Now let's go to the second one. And before that, if you see, अगर ये रेजरवॉयर ना होता तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता, यानी कि घट जाता. बट अगर ये रेजरवॉयर है तो टेम्परेचर फिक्स है, तो इसका मतलब एनर्जी फिक्स्ड है उसकी. लेकिन एनर्जी तो यूज होनी चाहिए थी उसकी ना, क्योंकि एक्सपैंड कर रही है. तो वो इन दिस प्रोसेस द एनर्जी फ्रॉम और द हीट फ्रॉम द रेजरवॉयर इज टेकन. दैट इज हियर इफ यू सी द प्लस Q, let's denote it by this plus Q. इतना हीट लिया गया है, लेट्स कॉल इट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, राइट. अदरवाइज वो सिस्टम जब वर्क करेगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा, लेकिन हम टेम्परेचर को नहीं घटाने दे रहे हैं. तो इसका मतलब टेम्परेचर को ना घटाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा हीट चाहिए, वो कौन दे रहा है, हमें रेजरवॉयर दे रहा है. सो इसीलिए ये प्रोसेस है जहाँ पर वर्क हो रहा है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है. रिमेंबर, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए प्लस Q लिया गया है. सेकेंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमें इसी को दोबारा ना बनाना पड़े. लेट्स मेक इट अगेन. अभी क्या है कि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है एंड वी सी दैट अगर एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर घटता है, राइट. और एडियाबैटिक है तो वी डोंट नीड दिस रिजर्वोयर नाउ बिकॉज टेम्परेचर हमें कांस्टेंट नहीं रखना है. सो वी विल नॉट यूज इट हियर. बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि अभी मेरी स्टेट कहाँ पर है, अभी मेरी स्टेट यहाँ पर पहुँच गई है, B पर, है ना. जो गैस थी वो यहाँ तक फैल गई है. तो इनिशियल स्टेट क्या है मेरी, अभी यहाँ पर इस केस में इनिशियल स्टेट क्या है, P2 V2 T1. अब नाउ वी आर सेइंग कि लेट्स डू एडियाबैटिक एक्सपेंशन. सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के लिए यू नो दैट देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, राइट. तो उसके लिए वी विल यूज़ द एडियाबैटिक वॉल्स, राइट. सॉरी,
एंड वी नो दैट हम वॉल को ऐसे क्रॉस डायगोनल से दिखाते हैं, और हम बोल रहे हैं कि इसको एक्सपैंड होने को, गैस को और बढ़ने को बोल रहे हैं। तो सब मैं कंटेनर को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि ये गैस थोड़ा एक्सपैंड हो सके, राइट। सो दैट इज़ देयर। और मान लो ये स्टेट सी में पहुँच जाता है एक्सपैंड होने के बाद, स्टेट सी में चले जाता है, ओके। एंड लेट्स सपोज टेम्परेचर इज़ P3 V3 T2, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं यहाँ पर अभी। तो अगर मैं इस केस में बोलूँ क्या हो रहा होगा, मतलब ये प्रेशर और वॉल्यूम घट रहा होगा, क्या हो रहा होगा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो ग्राफ बनता है PV का, वो भी एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, बट देयर इज द डिफरेंस इन द स्लोप। सो तो जो हमारी पहली स्टेट थी ए से लेके B वाली, तो हमारी आइसोथर्मल थी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। नाउ फ्रॉम B to C वी आर सीइंग दैट अगेन द expansion is happening. So sorry, this PV diagram is important. So the graph will again decreasing, but with higher the higher slope, steep, ज़्यादा steep होगा। तो हम यहाँ पर पहुँच गए। So if you see इस केस में भी वर्क हो रहा है, because volume is increasing, PdV is nothing but work। तो पहली प्रोसेस जो थी यहाँ पर भी वर्क हुआ और यहाँ पर भी वर्क हुआ, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम द इंजन। इंजन का काम क्या था कि वो वर्क को दे, हमें हीट को कन्वर्ट करके वर्क को दे, मैकेनिकल वर्क को दे। तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि वर्क इज़ डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, एंड वी हैव सीन द फॉर्मूलाज फॉर ऑल द केसेज। हाँ, हम इसीलिए हमने वो सब कुछ पहले पढ़ लिया कि उस वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा और क्या नहीं होगा फॉर्मूला, ओके। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ दैट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बी तक पहुँचे तो कुछ वर्क मिल गया हमें इंजन से। अब बी से सी तक पहुँचे, कुछ और वर्क मिल गया, बढ़िया बात, क्योंकि हमें वर्क ही तो चाहिए था। इसको W1 बोले, मान लो इसको W2 बोले, तो टोटल वर्क हमें W1 + W2 मिल गया। नाउ हमें इस प्रोसेस को साइक्लिक बनाना है, क्योंकि हम बार बार हमें रिपीट करना है। तो वी विल डू दोज स्टेप्स बाय कंप्रेशन, राइट। एंड दो वो कंप्रेशन कौन से वाले कंप्रेशन है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन है। कोई रैंडमली हम इसको इनिशियल पोजीशन पर नहीं ला सकते। दोज आर वेरी स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि उस केस में ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। वो कार्नो साइकिल ने, जो कार्नोट, जो साडी कार्नोट जो इंजीनियर था, उसने बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेरिमेंट करके, राइट, अपना यूज़ करके माइंड, वो उसने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि जब कौन से वो 4 प्रोसेस होंगी कि ये मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिले। तो ऑफकोर्स अगर हमें अब वापस जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्रेस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये वॉल्यूम इनिशियली यहाँ पर था वॉल्यूम, और अभी यहाँ पर आ गया है। और इसको देख तू, इस वाली पिक्चर को देख तू, अभी क्या है गैस, अभी गैस यहाँ तक फैल गई है ऊपर तक। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था स्टार्ट। तो अगर जब यहाँ तक फैल गई है, अगर हमें यहाँ तक जाना है तो वी नीड टू कंप्रेस इट, राइट। सो वी हैव टू एक्सटर्नली वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब हमें खुद से वर्क करना है, W1 + W इसने किया, और हमें अब खुद से वर्क करना है, तो हम चाहेंगे ना कि वी विल वांट कि वी शुड डू लेस वर्क, राइट। तो तभी तो फ़ायदा होगा। अगर मान ले 10 जूल का वर्क उसने दे दिया मेरे को, और 10 जूल का वर्क मैंने भी कर दिया उस पर, तो क्या फ़ायदा, इंजन का क्या मतलब उस चीज़ में। सो वी वांट इन द नेक्स्ट 2 प्रोसेस की कम से कम, जब हम वापस जा रहे हैं तो हमें कम से कम काम करना पड़े। तो वो काम, कम से कम काम एडियाबैटिक कंप्रेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन में ही पॉसिबल होता है, राइट। सो दैट इज़ वाई दोज प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग की व्हाट आई एम सेइंग. सो तीसरा जो प्रोसेस है वो है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन. तो हमारी स्टेट क्या थी, ये थी. हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे P3V ऐसे, और लेट्स दिस गैस यहाँ तक फैल गई थी. ना वी वांट टू कंप्रेस इट अगेन. द आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो कंप्रेशन होगा, तो अब क्या होगा, कंप्रेशन का मतलब क्या है कि वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम. सिस्टम पर वर्क होगा तो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, राइट. सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आइडियल गैस है तो. लेकिन हम चाहते हैं कि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो और टेम्परेचर ना बढ़े, तो इसीलिए हम अगेन वी विल यूज द and these walls are now not adiabatic walls. Heat can be exchanged and we want a reservoir, और वो reservoir का टेम्परेचर हम छोटा that we call at TL, lower temperature TL. okay, like this. So we want to compress it and the system goes from C to, let's suppose यहाँ तक चले गया, D तक चले गया. ओके, तो अगेन पीवी डायग्राम कहाँ तक जाएगा हमारा, कैसे जाएगा, मतलब ये था P, ये था मेरा V. सो यू कैन सी दैट हम यहाँ तक पहुँच गए थे, A से लेके C तक. ओके, बट नाउ we are compressing, so we are going back. We could have made some arrows like this. तो ऐसे आए हम. Now we can go back. कंप्रेस कर रहे हैं तो ऐसे बैक चले गए मान लो हम, ठीक है, C से लेके D तक चले गए. बट स्टिल वी हैव टू गो टू द टिल हेयर बिकॉज हमें टेम्परेचर, हमें इनिशियल स्टेट में जाना है, इनिशियल स्टेट में जाना है. एंड इफ़ यू सी, इस प्रोसेस में जब हम बाहर से काम कर रहे हैं इस पर ऐसा, तो उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, वो काम, इसको अगर तू इस इक्वेशन कैसे लिखेगा, डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा U. तो जो हमने काम किया एक्सटर्नली वो हीट और इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा. तो जो हमने एक्सटर्नली काम किया और उसको हीट और इंटरनल एनर्जी में चेंज किया, तो ऑफकोर्स जो हीट होगी, राइट, वो हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी. बट हम चाहते हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़े ना, तो वो हीट इस सिंक में चली जाएगी. इम्पोर्टेंट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर जो हमारा जो हीट है वो माइनस ऑफ डेल्टा Q L बोल देते हैं मान लो हम उसको, क्योंकि हमने जो वर्क किया था वो वर्क कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में और हीट में, राइट. और हम चाहते नहीं है कि वो हीट इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाए. टेम्परेचर ना बढ़े तो इसलिए वो हीट को उसको फेंकनी पड़ेगी थ्रू द सिंक और द सिंक रिजर्वर दैट वी कॉल इट, दैट इज एट टेम्परेचर TL. तो यहाँ पर हमने हीट को फेंका हुआ है. तो यू कैन मेक दिस इन द डायग्राम ऑल्सो, कि यहाँ पर हमने पहले प्रोसेस में हमने हीट को लिया था, एब्जॉर्ब किया था QH. इन दिस प्रोसेस वी आर, ये जो एरो ऐसे नीचे को एरो का मतलब है लिया है, और यहाँ से बाहर का एरो का मतलब है कि हमने बाहर फेंका है, यानी कि माइनस का QL, ये हमने हीट फेंकी हुई है. ओके, इन दिस प्रोसेस दिस वाज इम्पोर्टेंट. एंड सपोज यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा ये बढ़ गया, प्रेशर P4 बन गया और ये वॉल्यूम V4, बट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, सो इट इज़ T2. सो दिस इज माई स्टेप D or state D. So now we now we are having the last step, that is isothermal, that is adiabatic compression. Okay, adiabatic compression है तो we don't need this sink.
क्योंकि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखना है ना, और हमें ये इंसुलेटिंग वॉल चाहिए ताकि जो हीट एक्सचेंज ना हो सके बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. So we are at state D, right? We are at state D and ये था P4, V4, T2 and we are going to our initial state here and initial state जो हमारा था P1, V1, T1, we will reach here and that state is A, है ना. हमने यहाँ A से तो स्टार्ट किया था. आई थिंक यहाँ तक बात पूरी क्लियर है. आई डोंट थिंक कुछ इसमें ज़्यादा समझने लायक बात थी. ओके, तो इस चीज़ को अगर हम पीवी डायग्राम में दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स ये अभी हमारा डी से ऐसे ए में जाएगा. ये स्ट्रेट नहीं होगा, पैराबोला होगा ना, सॉरी हाइपरबोला, नॉट एग्जैक्टली हाइपरबोला क्योंकि वो गामा पर डिपेंड करता है. लाइक दिस, ऐसे. ओके, तो ये पूरी प्रोसेस चली. ये एक साइकिल बोलेंगे इसको. अब इस एक साइकिल में अगर तुम इसको पूरा एकदम विहंगम दृश्य देखें, बर्ड आई व्यू, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मैंने हीट ली, ओके, QH. उसके बाद मैंने इस QH हीट लेने में मैंने काम किया, मैंने फिर काम किया, मैंने मतलब गैस ने फिर काम किया. तो इन दो प्रोसेसेस में सिस्टम काम हमें दे रहा है, बाकी के दो प्रोसेस में सिस्टम पर हमें काम करना पड़ रहा है, राइट. सो द वर्क डन बाय द सिस्टम इज दिस वॉल्यूम, बड़ा वाला, क्योंकि ये इसमें काम हो रहा था और इसमें काम हो रहा था. तो इसके अंडर का एरिया अंडर दिस कर्व इज द वर्क डन बाय सिस्टम और द गैस. और जो बाद के नीचे के जो द कर्व हैं, ये आर दीज आर द वर्क डन बाय अस, बाय द सराउंडिंग और द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. तो नेट क्या निकला? नेट निकला ये वॉल्यूम, द नॉट वॉल्यूम, द एरिया ऑफ द कर्व, दिस साइकिल. ये जो एरिया है ना, दिस इज द वर्क डन बाय सिस्टम. मतलब इतना उसने मैकेनिकल वर्क दिया है इस हीट को लेने पर, QH हीट को लेने पर. इस हीट की कोई उसने ज़रूरत नहीं पड़ी उसको, उसने इतनी हीट को फेंक दिया बाहर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. तो इसीलिए बहुत बार इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि चल क्या रहा है, इसको एक स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं उसको. एक स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे बना देते हैं कि ये जो है इसको दर्शाने के लिए ऐसे बना देते हैं. मेरे पास एक रिजर्वॉयर था, जिसका टेम्परेचर TS था. तो इसने इस रिजर्वॉयर से हीट ली. ये मेरा इंजन है, इसको मैं एक सर्कल से बना रहा हूँ. इसने कितनी हीट ली है? QH हीट ली है. और इसने कितनी हीट फेंकी है? QL हीट इसने फेंकी है. किसको फेंकी है? रिजर्वॉयर जो सिंक था, जो लोअर टेम्परेचर पे था. ध्यान रखना, सिंक वाला रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर, दैट इज वाई वी आर डिनोटिंग इट बाय TL. ओके, एंड जितना इसने फेंका है और जितना इसने लिया है उसमें कुछ डिफरेंस है ऑफकोर्स. तो वो जो चीज़ थी वो इसने वर्क में कन्वर्ट किया है, वर्क डन. सो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है हीट इंजन का. तो इसको अगर तू देखेगा तो इसने Q लिया है और W काम किया है, राइट. Q प्लस W काम किया है इसने. और इसको ऐसे बोल सकता है कि इसने Q अमाउंट ऑफ हीट ली है, उसमें से W का काम किया और QH था, और QL को इसने फेंक दिया, यानी कि सराउंडिंग को दे दिया, सिंक को दे दिया. तो मतलब ये है कि द हीट इंजन इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द होल हीट.
जितनी उसने हीट ली रखी थी वो सारे की सारी वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसने कुछ हीट को फेंकनी पड़ी रिजर्वॉयर को जो लोअर टेम्परेचर पे था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको कभी कभार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल देता है कि एनी नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट 100% ऑफ द हीट इनटू वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस की बात होती है। अगर प्रोसेस साइक्लिक नहीं है तब तो वो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, बट इन अ साइक्लिक प्रोसेस नो इंजन कैन कन्वर्ट 100% ऑफ हीट एब्जॉर्ब इनटू द मैकेनिकल वर्क। ये सेकेंड लॉ भी कहलाता है कभी कभी, लेकिन सेकेंड लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बट वी कैन राइट दिस थिंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रखना, प्रोसेस हैज टू बी साइक्लिक। अगर वो साइक्लिक नहीं है तब तो कन्वर्ट हो सकती है 100%। In a cyclic process, the heat absorbed by engine cannot be converted fully into mechanical work. Got it? आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। नाउ हमें देखना है कि इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलती है, क्योंकि अब तो वो तो आसान है, वो हमने देख लिया कि कितना काम हमने निकाला है इस इंजन से और कितना हमने हीट दिया है। ओके फाइन, तो मैं सीधे फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे दिखाऊँगा नहीं कि फॉर्मूला कैसे आए, इसलिए प्रीवियस वीडियो वॉज इम्पॉर्टेंट। तो हम पहले प्रोसेस की हम पहले प्रोसेस की बात करें अगर, और यूज़ फर्स्ट लॉ। ध्यान रखना यहाँ पर अब हमेशा फर्स्ट लॉ का यूज होगा बार बार। तो यू नो दैट डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट सिंस हियर temperature is fixed, so delta T is 0, hence delta U is 0, because delta U is nothing but NCV delta T. Since delta T is 0, so delta U is 0. Therefore, delta Q is delta W here. And you know that delta W in the work done by system on surrounding in a isothermal process is given by nRT ln V final by V initial, that is V2 by V1 here. Okay, this is delta Q. और यही डेल्टा क्यू क्या है, उसने जो हीट ले रखी थी इतनी हीट उसने ली है सिस्टम ने। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव सीन। ओके, नाउ इन दिस सेकेंड प्रोसेस adiabatic expansion, in this process the delta Q is 0, right, because it is adiabatic process. So by the first law, that delta Q equal to delta U plus delta W, what do we get? Delta U equals minus delta W, or we can write in reverse where delta W is minus ka delta U. And in the last lecture we have seen what is the work done by a gas in an adiabatic process. You know that formula, that delta W is nothing but nR by gamma minus 1. What is here? T minus T. So what is the formula there? So let me see, I don't remember. So it was T इनिशियल माइनस T फाइनल, दैट इज़ गामा माइनस 1. इसीलिए फॉर्मूले को ऐसे याद रखना जरूरी होता है, इनिशियल और फाइनल, अदरवाइज 1-2 में कन्फ्यूजन रहता है. तो NR गामा माइनस 1 T इनिशियल माइनस T फाइनल. सो NR गामा माइनस 1 T इनिशियल माइनस T फाइनल. यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने ख़त्म किया. तो इनिशियली हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर आए तो T इनिशियल माइनस T फाइनल, सो दैट इज़ T1 माइनस T2. ये हमारा वर्क डन आया. और यही वर्क डन क्या है हमारा, माइनस का डेल्टा यू.
Okay, and so this is the equation number 2. Equation number 1. Now third process. If you see this third process, here we are having compression, that is isothermal compression. Okay, so again delta U is 0 because isothermal. So what do we get? Delta W equal to delta Q. And if you see, in this case compression is happening, right? That is dV is negative. Compression is happening, that is dV is negative. So if you find out that work done, delta W is equal to, and remember we are doing this work, so we will use negative sign. So P dV, and it is isothermal, that you already know what is the formula for that thing, nRT log V final minus V initial. What is V final here? V3 by V4. ओके, यहाँ से हम यहाँ पर गए हुए हैं. सो V3 बाई V4 उल्टा होगा ना, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक गए हुए हैं, तो इट इज़ V4 बाई V3. ओके, एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर? T इज़ द T2 हियर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. T2 हमने ऊपर भी लिखना भूल गए शायद हम. यस, सो यहाँ पर T क्या है? T1 था. nRT V2 बाई V1 था ना. वर्क डन क्या होता है, याद है ना? nRT V फाइनल बाई V इनिशियल. ये 2 1 3 4 से कन्फ्यूज ना हो, तो इसलिए V फाइनल बाई V इनिशियल याद रखना. V फाइनल बाई V इनिशियल. तो वैसे यहाँ पर V फाइनल बाई V इनिशियल देखेगा तो V फाइनल क्या है कंप्रेशन में? यहाँ पर फाइनल स्टेट है, यहाँ पर इनिशियल स्टेट है, तो यानी कि V4 बाई V3. बट सिंस नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो डेल्टा W जो होगा वो क्या हो जाएगा? nRT2 log V3 बाई V4, है ना? log x लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये होगी. तो डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू है, डेल्टा डब्ल्यू है, तो यही हो जाएगा हमारा. और ये क्या है? हीट. हमारी इतनी हीट क्या हुई थी? सिस्टम ने फेंकी थी, राइट? तो मैंने इसको यहाँ पर बनाना भूल भी गया था. लेट मी ड्रॉ इट राइट नाउ कि ये यहाँ पर सिस्टम पर हीट फेंकी गई है, तो एरो नीचे को बनाया गया है ऐसे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. एंड द लास्ट इक्वेशन, यहाँ पर भी कंप्रेशन हो रहा था, एंड वी नो दैट कंप्रेशन में वर्क डन क्या होगा? एडियाबेटिक है तो डेल्टा क्यू 0 होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस डेल्टा यू. एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस में? एन आर बाई गैमा माइनस 1. ओके, एन आर बाई गामा माइनस 1 ऊपर हमने लिया था, बाय इंटू टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, राइट? ये तो था टी इनिशियल माइनस टी फाइनल. यस, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल. टी इनिशियल क्या है यहाँ पर? ये T2. टी फाइनल क्या है? T1. T2 माइनस T1. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ओके, या दिस इज फाइन. ओके, तो ये सब कुछ जब हमने निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे इसको हम. अगर तुझे याद हो ना, जो हमने वर्क डन निकाला था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर ऊपर लास्ट क्लास में, तो इफ यू सी ना, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? डेल्टा डब्ल्यू इज़ पी डी वी यूज़ किया है ना. इसका मतलब ये कि हम इसको कैसे निकाल रहे हैं? प्लस साइन के साथ निकाल रहे हैं. तो प्लस साइन का मतलब क्या था? वर्क डन बाई सिस्टम. बट यहाँ पर जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा. सेम चीज़ है, बट बाई सिस्टम नहीं है, तो नेगेटिव साइन आएगा. ओके, कन्फ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में. फाइन. नाउ कितना वर्क हुआ है, कौन कौन से तो अब जब टोटल सब हमने कैलकुलेशन कर ली, अब समझने की बात ये है कि हमने एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करी थी. एफिशिएंसी इज़ द टोटल वर्क डन
right, in one cycle डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब, राइट, हीट एब्जॉर्ब। ये जो टोटल वर्क डन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। हमारी जो प्रोसेस थी यहाँ पर, पहले दो प्रोसेस में सिस्टम ने काम किया, राइट, सिस्टम ने काम किया। अब इसके बाद हमने काम किया सिस्टम पर, ओके। तो ये जो पहले के जो दो वर्क हैं ये काम के वर्क थे, इसने हमको काम दिया, बट एफिशिएंसी में सारे के सारे वर्क काउंट हो रहे हैं। तो अगर तो ध्यान देगा तो ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क सिस्टम का था। तो मान लिया डेल्टा W1 डेल्टा W2 ये हमारा काम का था। अब हमें ये देखना है कि टोटल वर्क कितना मिला सिस्टम से, राइट। तो ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमें करना भी तो पड़ा, हमें कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा, W3 प्लस W4, वो हमें घटाना पड़ेगा ना। ये जो W3 था और ये W4 था कंप्रेशन वाला, वो हमें घटाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितना फाइनल हमें काम मिला। ये थोड़ा देखना है कि भाई इसने कितना कर दिया, इसने तो कर दिया अपना काम डेल्टा 1 डेल्टा 2 वाला, बट हमने भी तो किया है ना उस पर काम। तो डिफरेंस जो है ना वो काम का है, वो एफिशिएंसी में आता है, ओके, वो एफिशिएंसी में आता है। तो अगर तू देखेगा तो ईटा इज़ नथिंग बट डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 माइनस जो हमने किया डेल्टा W3 प्लस डेल्टा W4 बाई डेल्टा Q एब्जॉर्ब्ड। ये यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड वाला ही आएगा। तो अगर तो देखेगा डेल्टा 1 क्या है बाई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज नथिंग बट दिस, ओके, लेट्स कॉपी इट डाउन। ये डेल्टा 1 आ गया हमारा। व्हाट इज डेल्टा 2? दिस इज डेल्टा 2, ओके। देन हमें देखना है कि कितना काम हमने किया इस सिस्टम पर। दिस प्लस दिस तो ये तो फिर सीधे माइनस ही हो गया, वी डोंट नीड दिस। तो ये सारा हमारा न्यूमरेटर निकला, ओके। सो लेट फर्स्ट कैलकुलेट न्यूमरेटर। तो अगर तू देखेगा थिंक इट इज़ करेक्ट ना, माइनस फाइन। तो लेट्स ओपन इट, nRT1 ln V2 by V1 plus nR gamma minus 1 T1 minus T2 minus nRT2 ln V3 by V4 plus nR gamma minus 1 T2 minus T1. So these two works are cancelling out, आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कैन यू सी देम, है ना। और ये nRT1 ln V2 by V1 माइनस nRT2 ln V3 by V4, दिस इज द नेट वर्क। इतना हमें काम मिला है, ओवरऑल काम उस सिस्टम से। देयरफॉर एफिशिएंसी इज नथिंग बट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर अगर तू देखेगा यही है, हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब क्या था पहले? हीट एब्जॉर्ब इज इक्वेशन 1 ओनली, राइट। डेल्टा Q इज डेल्टा W, तो दैट इज नथिंग बट दिस थिंग, न्यूमरेटर, okay. And if you divide these things, it will become 1 minus T2 by T1, right, ln V3 by V4 like this by ln V2 by V1. So this is the efficiency right now.
एंड वी वांट टू कन्वर्ट, एंड बिकॉज हमें क्या पता है, हमें V3 V4 V1 V2 V1 की वैल्यू नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें सिंक और सोर्स की वैल्यू पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है ना, ये जो हमने यूज़ किए हुए हैं ये हमें पता है। ओके ये हमें पता है, ये और ये। ओके तो हमें अब इन 2 चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस एंड टेम्परेचर। ओके सो V3/V4 क्या चीज़ है, V3/V4 क्या चीज़ है? इफ़ यू सी in this process, right, B2C here in this process, B2C वाले प्रोसेस में कुछ देखेगा, एडियाबेटिक इक्वेशन अगर याद तेरे को है तो PV गामा इज कांस्टेंट होता है, एंड वी नो दैट दिस वन TV गामा -1 भी कांस्टेंट होता है। ओके तो अगर तू इसको यूज़ करे फ्रॉम B to C, यहाँ से लेके यहाँ तक, B पर इस इक्वेशन की क्या वैल्यू होगी, B पर T1 V2 गामा -1, क्योंकि B पर ये कोऑर्डिनेट है देख, और C पर ये कोऑर्डिनेट है, तो C पर जो वैल्यू होगी वो आपस में बराबर होगी, तो C पर जो वैल्यू होगी क्या होगी, T2 V3 गामा -1। ओके तो यहाँ से V3/V2 पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1/T2, राइट। ये एडियाबेटिक इक्वेशन पहली वाली हो गई। अब दूसरे वाले एडियाबेटिक पे अगर तू जाएगा, यहाँ पर अगेन ये T और V वाला यूज़ कर, तो क्या आएगा देख, T2 V4 गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा -1, है ना। यहाँ पर क्या है T1 V1, यहाँ पर क्या है T2 V4। अगेन यहाँ से अगर तो निकालेगा V4/V1 पावर गामा -1 इज अगेन T1/T2, राइट। अब तो इसको और इसको कंपेयर कर। ओके लेट मी ब्रिंग इट डाउन। हियर ओके ये हमने निकाला पहली एडियाबेटिक प्रोसेस पर, ये निकाला हमने दूसरी एडियाबेटिक प्रोसेस पे जो कंप्रेशन है, ये दोनों चीज़ निकाले, और ये RHS में दोनों जगह T1/T2 है। इसका क्या मतलब है कि दोनों LHS आपस में बराबर होंगे, लाइक दिस। ओके एंड इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, यू कैन कैंसिल द पावर्स, मतलब V3/V2 इज इक्वल टू V4/V1, फाइन। यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो अगर तू यहाँ पर देखेगा, अगर ये ये चीज़ देखेगा तो ये लॉग का जो आर्गूमेंट है वो दोनों केस में बराबर है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। यू कैन कैंसिल दीज 2 थिंग्स, राइट। हेंस जो ये ईटा आया वो क्या आया, 1/T2/T1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये जो T1, जब ये पहले बार हमने यहाँ पर रिजर्वायर को रखा हुआ था ना, तो ये जो सिस्टम था, जब ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हुआ, तो ये टेम्परेचर थ्रू आउट T1 है, तो ये T1 TH ही है ना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल प्रोसेस थे, इसलिए हर एक पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर रहेगा सराउंडिंग के। सराउंडिंग यहाँ पर ये हमारा सिंक है। तो ध्यान रखना, ये चीज़ मैं पहले बताना भूल गया कि जो T1 है वो TH है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और जब यहाँ पर रिजर्वायर लगाया था हमने सिंक वाला, जो T2 था वो TL है, ध्यान देना। लेट मी नॉट राइट इन दिस वे, क्योंकि वो सराउंडिंग यहाँ पर TL है, तो TL इज नथिंग बट T2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। थ्रू आउट द आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट, एंड दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक।
तो अगर तू इसको यहाँ पर देखेगा, T2 की जगह पे सिंक रखेगा, वन माइनस TL बाई TH। सो दिस इज रिमार्केबल फॉर्मूला कि पूरी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी, है ना। पहले हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन निकाला, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वर्क डन निकाला, देन ऑल दोज 4 प्रोसेस के लिए हमने उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया। उस पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि जो इंजन की एफिशिएंसी आ रही है, कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी आ रही है, दैट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द रेजरवॉयर्स, द सिंक एंड द सोर्स। उन दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और किसी भी चीज़ पर इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एनी प्रोसेस। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो हमने हीट इंजन के ऊपर एक खूबी बता रखी थी, तो इसका मतलब ये है कि मान ले अगर मेरे पास ये एक पहला रिजर्वायर था हाई टेम्परेचर पर, एक दूसरा रिजर्वायर है लो टेम्परेचर पर, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसे थे, ये पहला इंजन है मेरा, लेट्स कॉल इट इंजन नंबर 1 एंड लेट्स कॉल इट इंजन नंबर 2। तो इन दोनों इंजन में सेम चीज़ ये है कि दोनों इंजन टेम्परेचर, दोनों ही लो एंड हाई एंड लो टेम्परेचर दोनों ही इंजन का सेम है। इंजन का टेम्परेचर नहीं, द सिंक ऑफ द टेम्परेचर, द टेम्परेचर का सिंक, सॉरी टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर इज सेम फॉर द बोथ इंजन। तो अब तू कितने ही इंजन बना ले दुनिया में, जितनी मर्जी तू इंजन बना ले, और उसमें तो कोई भी तरीका आजमा ले, कार्नो साइकिल पर जो चलेगा ना इंजन, क्योंकि हमारे पास हमने बोला कि साइक्लिक प्रोसेस है, तो कोई भी साइकिल बना सकता है, राइट। होते भी स्टर्लिंग इंजन होता है, ऑटो इंजन होता है, जो हमारी रियल लाइफ में जो इंजन्स होते हैं कार्स में या किसी और व्हीकल्स में, वो इसमें तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये आइडियल प्रोसेस है। वो अलग अलग प्रोसेस पे काम करता है, तो चेक कर सकता है गूगल पर। तो मान ले तूने एडियाबैटिक प्रोसेस यूज़ की और आइसोकोरिक प्रोसेस यूज़ की, तो यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन जो ये E1 है, लेट्स सपोज E1 तुम्हारा कार्नो वाला है, कार्नो, और ये नॉट कार्नो, तो यहाँ पर अगर एफिशिएंसी NC है और यहाँ पर एफिशिएंसी NC प्राइम है, तो ऑलवेज NC विल बी ग्रेटर देन NC प्राइम। डजेंट मैटर तो कुछ भी कर ले। सो दिस इज द फायदा, बेनिफिट कि हम आइडियल केस पढ़ते हैं। आइडियल केस से हमें एक कट ऑफ मिल जाता है कि भाई तुम उससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में, कुछ भी कर लो तुम। ओके, सो दिस वॉज द कार्नो इंजन। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, यू हैव टू यूज दिस टेम्परेचर इन द एब्सोल्यूट स्केल। ओके, इसका मतलब क्या है कि मान लो क्वेश्चन आता है कि सपोज अ कार्नो इंजन वर्किंग ऑन द reservoir temperature 700 degree Celsius and 200 degree Celsius, find out the efficiency of engine, efficiency of engine। तो पॉइंट ये है कि you know the formula eta equal to 1 minus T lower by T higher। you can't use like this 200 वाला और 700 वाला, and if you find out the answer it will come like 5/7, right? It is wrong. You need to use the Kelvin scale. So T lower is of course 200 degree Celsius, no doubt, but you need to convert it into 273 like this, so it will become 473 Kelvin, and T higher is 700 degrees Celsius, so it will be nothing but 973 Kelvin।
Now you need to put this formula in this data in the formula like this, and you can find out the efficiency. Whatever is this, I am not caring about the result. ओके तो ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ये फैकल्टी या फिर जो एग्जामिनर होता है वो ये तुमसे मिस्टेक करवाता है कि वो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दे देता है, लेकिन बच्चे उसको वैसे यूज़ करके आंसर निकाल देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग. सो दिस वाज अबाउट हीट इंजन, कार्नो हीट इंजन. एंड रिमेंबर, सो मुझे ये पॉइंट लिखने दे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में कभी हो सकता है तो मिस्टेक कर दे, तो नोट रिवाइज करेगा तो काम आसान हो जाएगा. ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर इज वैलिड ओनली फॉर कार्नो साइकिल, कार्नो हीट इंजन. अगर कोई और हीट इंजन है तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, पहली बात. दूसरी बात, use the temperature in Kelvin scale. तीसरी बात, सिंस अगर तूने देखा होगा हमने बोला कि जो ये T2 था वो TL था और TH जो था तो T1 था. तो यानी कि जो T यहाँ से जो पूरी प्रोसेस थी 1 और 2 वाली जो प्रोसेस थी, ये पूरी जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस है, ये वाला टेम्परेचर T1 है और ये वाला टेम्परेचर T2 है, राइट है ना. तो T1 और T2 कभी बराबर नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि ये देख अलग अलग टेम्परेचर हैं. यानी कि T लोअर एंड T हायर आर नॉट इक्वल. सिंस T लोअर इज नॉट इक्वल्स T हायर, therefore efficiency of Carnot heat engine is always less than 100%. अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो ये 0 हो जाता, तो ये 1 हो जाता. 1 का मतलब 100 होता है. 100% का मतलब जितना तुमने हीट लिया था उतना हीट तुमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. तो हमने देखा था कि उसको हीट को फेंकना पड़ता है. तो अगर कार्नो साइकिल की हीट एफिशिएंसी 100% नहीं है तो किसी और साइकिल की भी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बेहतरीन साइकिल तो ये वाला है ना, कार्नो साइकिल. तो नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, नॉट डिग्री. फाइन, ओके. अब बात ये आती है कि ये तो हमने पूरी प्रोसेस करके देख ली, मतलब पूरा हमने एक लंबा डेरिवेशन करके देख लिया. लेकिन अगर तू इस वाले डायग्राम को देखे, ये वाला डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, इसको तू लिख भी सकता है नीचे, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हीट इंजन. कोई भी हीट इंजन का ये डायग्राम बन सकता है, ठीक है. अब अगर तो यहाँ से देखे ना कि हमने क्या बोला कि ये इसने इतना हीट लिया, इतना हीट फेंका और इतना वर्क किया. ओके, ये जो वर्क है ना, ये वर्क टोटल वर्क है, ध्यान देना, ये वर्क टोटल वर्क है. ओके, ये पहली 2 प्रोसेस वाला वर्क नहीं है, टोटल वर्क है. तो अगर तुम यहाँ से सिंपली फॉर्मूला यूज़ करें, ईटा इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, W, इतना वर्क किया और हीट कितना ऑब्जॉर्व किया, QH, राइट. और इक्वेशन क्या निकल के आ गया यहाँ से, क्योंकि इसने QH लिया था और उसमें से W वर्क किया और QL फेंक दिया, ठीक है. तो यहाँ से तो WL की वैल्यू क्या लिख सकता है, QH माइनस QL, कितना फेंका और कितना लिया, बाई QH. तो ये ईटा क्या आ सकता है यहाँ से, 1 माइनस QL बाई QH. ओके, ये भी ईटा आ सकता है. ये इन जनरल किसी भी इंजन के लिए पॉसिबल है. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी इंजन, वैलिड फॉर एनी इंजन. एंड वी हैव सीन कि
we have seen that for Carnot engine, eta is equal -1 upon this t lower by t higher. तो इसका मतलब क्या है कि फॉर Carnot इंजन QL अपॉन QH इक्वल्स TL अपॉन TH, रिमेंबर. तो हो सकता है कि कभी कभी न्यूमेरिकल में वो टेम्परेचर ना दे, जैसे हमने ऊपर एक न्यूमेरिकल देखा, वहाँ पे हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी थी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर बार तुम्हें हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर की वैल्यू दे. वो दे सकता है QL और QH. QL और QH का मतलब क्या है कि कितना हीट उसने रेजरवॉयर को फेंका, दैट इज QL, एंड QH इज कितना हीट उसने रेजरवॉयर से लिया, एब्जॉर्व किया, कितना एब्जॉर्व किया और कितना एमिट किया, दैट इज द QL एंड QH. ओके, तो ध्यान देना कि ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है Carnot इंजन के लिए. आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर Carnot इंजन. वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं Carnot साइकिल के बेस पर जो इंजन बना होगा. तो दिस इज ऑल. एंड रिमेंबर Carnot इंजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल इंजन, राइट. कभी वो नाम यूज़ कर दे, दूसरा नाम यूज़ कर दे, बट इट इज़ द सेम थिंग, दैट इज़ रिवर्सिबल इंजन. फाइन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट